In the last lecture, we have seen what is deadlock, few examples for the deadlock, and then strategic and characteristic for the deadlock. Today we are going to discuss resource allocation graph for the deadlock. Why it is required? Because in a previous lecture you have seen, if you are able to remember that thing, strategy of dealing with the deadlock. Strategy to dealing with the deadlock. In that we have find the detect and recovery. Point number 3. So for that, to detect the deadlock, whether it is present or not, we need a resource allocation graph. Here you need to remember only two symbols. One is circle and second is the square. Circle is represented as a process and circle is for the resource. Circle is for process and second is the resource square. Now what is type with 4 instance? It means uh, we have a number of 4 resource of that type. Instances mean, for example, we can say that apple. So it is we have 4 apple, 4 instance. Okay. Now pi requests instance of rj. pi request instance of rj. It means pi request कर रहा है. So from the process, the arrow goes outside to the resource. And if P is holding the instance of R, then arrow goes inside to the process from the resource. Remember this thing. Again, I am repeating this thing in a next slide. Okay. I hope, as I told you, come up with a pen and paper. I hope all of you are having a pen and paper so you can note it down, because I am going to give you some practice. In this figure, resource allocation graph, फिगर ए शोज होल्डिंग द रिसोर्स. रिसोर्स होल्ड कब करेंगे? जैसे हमने लास्ट में देखा था, लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट रिक्वेस्ट अ रिसोर्स. If that resource is free, then use that resource, and after using that resource, release that resource. So deadlock will never occur. So similar, यहाँ पे हम holding a resource वो display करवा रहे हैं. So arrow goes inside the process. So right now A is holding the resource R. A is holding the resource R. This is process and this is resource. Where is resource? Now B, requesting a resource. In diagram B, requesting a resource. It means process B outside the arrow. It means B is requesting resource S. B is requesting resource S. Now third, in the diagram C, it is mentioned deadlock. We'll see how it is run deadlock. Now if you see here D, D is holding what? You can type into chat. D is holding what? P or U? Okay, I will put only 4 students at present. हाँ, सब लोग को आंसर देना है. Okay, fine, good. Now D is holding T and D is requesting U. D is requesting U, but C is holding what? U. And C is requesting T, which is held by the D. So there is a cycle. ये पूरी साइकिल दिख रही है हमें in one direction. So there is a cycle that there is a deadlock. If cycle is not there, then deadlock नहीं है. क्लियर? ये क्लियर हो गया सबको? Let's move forward. Now
one example how deadlock occurs and how it can be avoided. कई कबार ऐसा होता है कि डेडलॉक हम पहले पहले तो क्या है कि गलती से भूल नहीं करना है, अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको सुधारना है। सेम ईयर पहले तो डेडलॉक होना ही नहीं चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। अगर प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हो, डेडलॉक हो रहा है, होने दो। उसको सुधारने के लिए हम पहले क्या गलती हुई वो फाइंड करेंगे, मीन्स डेडलॉक डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले डेडलॉक डिटेक्ट करेंगे, पहले तो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस है, ए बी एंड सी, थ्री प्रोसेसेस वी आर हैविंग एंड रिसोर्स। A request R, B request S, and C request T. We will go through the row by row first, not like horizontal, vertical. Request A, request S, request S, request S. So we'll go for the request R. Initially, R, S, and T, three resources are free. So whenever A put the request R, it will be granted. So A is holding the R, right? Similar way, B is holding S, C is holding T. So अब आपको क्या करना है? You have to pay attention on a screen because I am going to switch two slides. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। फर्स्ट ए रिक्वेस्ट आर और आर अवेलेबल है, तो आर मिल गया ए को। सो ए इज होल्डिंग आर, A is holding R in diagram A, in figure E. Sorry, in figure E. Now next क्या है? B request S. S भी free है तो अभी मिल गया। तो B request S in figure F. B request S and S अभी यहाँ पे free है। B is holding S. Similar way T यहाँ पे free है तो C request T and it is granted and now C is holding T. क्लियर? नाउ प्रीवियस स्लाइड में जाके देखो फिर से, A is requesting S। यहीं से हमें पता चल रहा है कि S को रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन S तो B के पास है। देखो क्या बोला, A रिक्वेस्ट S, यहाँ पे भी लिखा है फिर भी आप देख सकते हैं, A रिक्वेस्ट S। सो A requesting, it means outside arrow to the resource, A requesting S। Now next one is B request T. So B request T in diagram I, B request T in C request R in diagram J, C request R, my cursor यहाँ पे देख रहा है, C request R। Now if you observe यहाँ पे साइकिल बन रही है, देखो all arrows are in one direction, R to A to S, S to B, B T C and C to R, सभी एक डायरेक्शन में जा रहा है। इट मींस देयर इज अ साइकिल। इफ देयर इज अ साइकिल देन डेडलॉक डेफिनेटली होगा ही। वैसे भी विदाउट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से भी हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ ही पे पता चल जाएगा, क्योंकि ए ने रिक्वेस्ट भेजी एस को बट एस इज होल्ड बाय बी, तो एस नहीं मिलेगा। तो देयर इज अ डेडलॉक। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डेडलॉक। क्लियर? Up to this clear? Any doubt? If you have any query, any doubt, then you can ask. So यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेडलॉक अकर्स, कैसे अकर हो रहा है ये हमने देख लिया। नाउ हाउ इट कैन बी अवॉइडेड, दैट यू नीड टू फाइंड। हम क्या करें, इसमें कुछ सीक्वेंस चेंज करें या फिर कुछ ऐसा क्या करें ताकि ये डेडलॉक यहाँ पे साइकिल जो है वो रिमूव हो जाए, डेडलॉक हट जाए। दैट यू नीड टू थिंक। If you want to draw it, you can take pen and paper and draw and tell me how you can avoid this deadlock. I'm giving you a few minutes to. हाँ, पहले एक चीज मैं बता दूं,
ताकि आपको ये समझने में थोड़ा सा इंटरेस्ट इंक्रीज हो। जीटीयू में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ प्रीवियस ईयर पेपर्स में अभी तक नहीं पूछा है। इट डजंट मीन दिस इज नॉट आईएमपी पॉइंट। In a competitive exam and in a placement, there will be a certain type of question like this कि चलो गेट की ही बात कर लेते हैं। गेट इज हाई लेवल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। सो गेट में ऐसा तो क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें रिसोर्स एलोकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, एक प्रोसीजर ऐसे जो अभी आपको दिख रहे हैं कि ये प्रीवियस स्लाइड में ऐसे कुछ रिक्वेस्ट आपको दी होगी। आपको देखना है कि डेडलॉक है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर ये आपको पता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड साइकिल आ रही है तो आप बोल देंगे सर डेडलॉक है। लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है, एरो, एरो की डायरेक्शन, होल्ड किससे कहते हैं और रिक्वेस्ट किससे कहते हैं। अगर ये आपको नहीं पता है तो वो आप एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, और वहां पे आपको पता है कि गेट में तो क्या है कि जितना टाइम बचे उतना बचाना है, तो आपको अगर ये शॉर्टकट पता होगी तभी आप कर पाएंगे ना। सो दिस इज द फंडामेंटल और बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ओके कंटिन्यू, और टेल मी कि ये डेडलॉक कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इसमें क्या चेंजेस करें, या फिर किसको डिनाई करें, किसको रिसोर्स ग्रांट करें, किसको नहीं करें ऐसे। ओके फाइन, नो इश्यू, आई एम गिविंग यू
Yes, anyone? You can do anything. Thing is that it should be avoided. Yes. Let's go ahead. If if you know that this person or this process will cause a problem for us, you will ignore that thing. So here, if OS knows that process B leads to deadlock, then it could suspend a B. So B को सस्पेंड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, B को अलोकेट ही नहीं करेंगे, उसको ग्रांट ही नहीं देंगे. सो A रिक्वेस्ट R होगी, C रिक्वेस्ट T ये हो गई, एंड A रिक्वेस्ट S, A रिक्वेस्ट S तो ये भी मिल गया क्योंकि S राइट नाउ फ्री है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये है ना A रिक्वेस्ट S, B को हमने इग्नोर कर दिया. रिक्वेस्ट आर सेटिस्फाइड, रिक्वेस्ट टी सेटिस्फाइड, रिक्वेस्ट एस ए ने की वो भी सेटिस्फाइड. क्यों? क्योंकि वो बी को हमने सस्पेंड कर दिया इसलिए. नाउ सी इज आर. सो यहाँ पे देखो सब जगह कहीं पे भी साइकिल नहीं बन रही है. सो वी कैन अरेंज, इंटरचेंज और रीअरेंज द सीक्वेंस. किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं. जैसे अगर आपके क्लास में कोई न्यूसेंस कर रहा है तो आपको सस्पेंड कर दो तो वो न्यूसेंस बंद हो जाएगा. सिमिलर वे इन दिस प्रोसेस, इफ ओएस न्यू दैट द प्रोसेस बी इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यूसेंस, न्यूसेंस इट मींस डेडलॉक. अगर डेडलॉक करना चाह रहा है वो करेगा तो वो बी को ही सस्पेंड कर देंगे तो डेडलॉक नहीं होगा. क्लियर? ओके फाइन. नाउ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. एक बार और समझा दीजिए. वही मैं समझा रहा हूँ. डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, when this technique is used, whenever we are trying to prevent the deadlock, but deadlock will occur anyhow, then it's okay, fine, let them occur. डेडलॉक को हम स्टॉप करना चाहते हैं लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, डेडलॉक होने दो. then we will detect the deadlock when this happen and then take some action to recover after the fact. so हम रिकवर करेंगे. तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्रीवियस स्लाइड में देखो यहाँ पे क्या किया, सबको रिसोर्स चाहिए दे दिया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक हम रोक नहीं सकते. रिक्वेस्ट ग्रांट की तो डेडलॉक यहाँ पे हो रहा है तो हमने क्या किया, लेट देम अकर, डिटेक्ट द डेडलॉक. तो यहाँ पे हमने साइकिल डिटेक्ट की तो डेडलॉक डिटेक्ट हो गया. सो उसको रिकवर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बी प्रोसेस बी लीड्स टू डेडलॉक तो बी को ही सस्पेंड कर दिया, वो एक्शन लिया हमने. सो दैट इज द रिकवरी. आप ए को भी कर सकते हो, सी को भी कर सकते हो, एनी वन को कर सकते हो. सो बी को हमने सस्पेंड कर दिया. तो आप प्रीवियस स्लाइड में देखो कि यहाँ पे बी को एस होल्ड कर रहा था और वो रिक्वेस्ट ए यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे क्लेश आ रहा है, लेकिन बी को ही सस्पेंड कंसिडर ही नहीं करते. तो क्या हुआ, ए रिक्वेस्ट आर ग्रांटेड, सी रिक्वेस्ट टी ग्रांटेड. नाउ नेक्स्ट ए रिक्वेस्ट एस. सो ए रिक्वेस्ट एस और एस यहाँ पे अभी फ्री है ना, किसी ने होल्ड नहीं किया है तो ए ने होल्ड कर दिया. नेक्स्ट सी रिक्वेस्ट आर, सी रिक्वेस्ट आर तो सी रिक्वेस्ट आर, लेकिन आर किसके पास है, ए के पास. ठीक है, तो आफ्टर यहाँ पे कंडीशन ऐसी कुछ होगी और होनी चाहिए कि एक रिसोर्स एट अ टाइम यू कैन होल्ड only one resource. Here A is holding two resources R and S, but if someone is requesting for that resource, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो एस मस्ट हैव टू रिलीज एनी वन रिसोर्स, आइदर आर और एस. ए ने अभी क्या किया, रिलीज कर दिया आर. ठीक है, आप ऐसे बोले मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, नहीं ऐसा, आपको एक ही चीज रख सकते हो, दोनों में से एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी. तो सिमिलर ए ने आर छोड़ दिया तो आर किसको मिल गया, सी को.
नाउ सी इज होल्डिंग टू थिंग, टी एंड आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, बाद में ए ने भी रिलीज कर दिया यस, क्योंकि हमारी सीक्वेंस क्या है, रिक्वेस्ट द रिसोर्स, यूज दैट रिसोर्स एंड रिलीज दैट रिसोर्स। ए ने रिक्वेस्ट किया, मिल गया, यूज किया एंड देन यहाँ पे लास्ट में रिलीज कर दिया। तो लास्ट क्यू डायग्राम में देखो कहीं पे भी साइकिल नहीं बन रही, इट मीन्स डेडलॉक अवॉइड हो गया। अवॉइड कैसे हुआ, बाय निगलेक्टिंग एनी वन प्रोसेस। तो रिकवरी आपने डीबीएमएस में भी देखा था, यहाँ पे भी देख रहे हो, ठीक है, क्लियर, फाइन। नाउ नेक्स्ट, तो ये हमने किया। अगर डेडलॉक नहीं रोक सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, होने दो, हम डिटेक्ट कर लेंगे। ट्रैफिक में आपको पता है कि कोई मनमान ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, जब जाम होगा तब देख लेंगे। जब जाम हुआ ट्रैफिक जाम, तब डिटेक्ट कर लिया कि ट्रैफिक जाम हो गया और रिकवर कर लिया, दैट्स इट। सो लेकिन उसके लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज नॉन एज द अल्गोरिथम। सो डिटेक्ट करने के लिए कुछ अल्गोरिदम चाहिए और रिकवर करने के लिए कुछ अल्गोरिदम चाहिए भी। गूगल मीट में से 3 स्टूडेंट्स को निकाल रहा हूँ, सपोज अभी से खुशहाल एंड मिहिर, तीनों को निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों मुझे क्या बोलेंगे, सर व्हाट इज द रीजन, बोलेंगे नथिंग। फिर आपने ये किया है कि माइक अनम्यूट करके कुछ बोल रहे हो, इसलिए मैंने आपको निकाल दिया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए निकाल दिया, ठीक है। फिर कल मुझे गौरव क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट लेक्चर में, मैं गौरव को नहीं निकाल रहा, तो मीर, कौशल और अभी से क्या बोलेंगे, सर आपने, हमने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने हमें निकाल दिया, गौरव ने क्वेश्चन पूछा तो क्यों नहीं निकाला, आप पार्शियलिटी कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अल्गोरिथम सेम होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सेम फॉर मी। तो सिमिलर वे here, whenever you are detecting any deadlock or recovering from the deadlock, that should be a algorithm. So algorithm कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वो सब जगह सब सिचुएशन में फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। वो हम समझेंगे, उसके लिए हम पहले डेडलॉक डिटेक्शन करेंगे by using resource allocation graph, more practice with one resource or multiple resource. First we go for the one resource in today's lecture, with multiple resource in next lecture. One resource of each type, it means हर एक के एक ही रिसोर्स है हमारे पास, लाइक वन स्कैनर, वन प्रिंटर, वन सीडी। मैंने लास्ट में एग्जांपल दिया था ना, वो एप्पल मैंगो, हाँ, तो हमारे पास एक मैंगो, एक पाइनएप्पल और एक एप्पल है, ऐसा ऐसा नहीं कि 10 एप्पल, 3 मैंगो, 5 बनाना, ऐसा नहीं, सबके एक एक ही रिसोर्स टाइप है। देन हाउ वी कैन ड्रॉ द एलोकेशन ग्राफ, हाँ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का दूसरा नाम भी है वेट फॉर ग्राफ, रिमेंबर दिस थिंग। इन दिस वेट फॉर ग्राफ, if you find the cycle, then deadlock exists. If there is no cycle, then deadlock is not there. Clear? तो वो तो हमने previous slide में देखा, that's it. Now this is the question. Assume करो कि सपोज गेट में ये पूछा कि कहीं पे भी पूछ लिया, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। देयर आर 7 प्रोसेस A to G, A to G हमें प्रोसेस है A B C D E F G, 6 रिसोर्सेज R through W, R से लेके W तक हमारे रिसोर्सेज है 6। नाउ सर्टेन कंडीशंस आर गिवन टू यू, प्रोसेस ए होल्ड R एंड वांट्स S, प्रोसेस ए को R, प्रोसेस ए को प्रोसेस ए आर होल्ड कर रही है एंड एस चाहिए, वांट्स, इट मींस रिक्वेस्ट करेगी, ऐसी सारी कंडीशन दी है। नाउ नेक्स्ट लास्ट लाइन, इज दिस सिस्टम डेडलॉक एंड इफ सो व्हिच processes are involved, it means we have to draw the resource allocation graph based on these points, and then we have to check whether there is a cycle, then there is a deadlock. If there is a deadlock, then which processes are involved, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है। अगर साइकिल नहीं बन रही है तो डेडलॉक नहीं है, क्लियर। सो दिस इज फॉर यू, आई एम गिविंग यू a few minutes, take a pen and paper and go ahead, draw the resource allocation graph for this scenario, and हाँ,
सबका सेम नहीं आएगा, मैं बता ही दे रहा हूँ। लेकिन डेडलॉक के अंदर जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी वो सेम आएगी, अगर आपका डेडलॉक है तो। अगर डेडलॉक नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो डोंट कंपेयर योर आंसर विथ एनीवन। सबका डायग्राम अलग अलग ही आएगा। हाँ, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, नीट एंड क्लीन, तो आपको पता चल जाएगा कि डेडलॉक है कि नहीं। अगर आप गड़बड़ करेंगे, रफली ड्रॉ करेंगे, यहाँ से सर कहाँ देखने वाले, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नाउ गिव मी द आंसर, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स। Once you done with your answer, paste your answer into a chat. If there is no deadlock, then no deadlock ऐसा लिखना। अगर deadlock है, yes deadlock, and कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है वो प्रोसेस की लिस्ट लिखना वहाँ पे।
I got two answers, but both are different. Do it by carefully. Yeah? What about others? ठीक है, ये 4 स्टूडेंट की प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है। Be fast. खुशबू, ये आंसर सही नहीं है। डेडलॉक नहीं भी है और है भी है। एक ही डायग्राम में ऐसा कैसा हो सकता है? एक ही आंसर है ना। लास्ट 1 minute टू। Okay. Deadlock is there. Let's see how. This is the answer for this slide. A is holding R and A is requesting S. C is requesting S. F is holding W and F is requesting S. ऐसे आप resource allocation graph draw करेंगे, then you will get one cycle here. D, E and G. देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन D to E, D T E V G U D, तो उसको मैंने यहाँ पे साइड में साइकिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डायग्राम ए, तो ये पूरी साइकिल हुई। इट मींस डेडलॉक इज देयर और डी ई जी प्रोसेस आर इन्वॉल्व। सो आंसर ऑफ दक्षा ए कहाँ से? डेडलॉक ए नहीं आएगा इन्वॉल्व। डी ई जी इज द करेक्ट आंसर। सौरभ, दक्षा, अरमान, डी एफ जी। एफ कहाँ पे आया? एफ है ही नहीं बेटा, एफ नहीं आएगा ना, एफ इन्वॉल्व नहीं होगा। एफ से तो साइकिल नहीं है। इससे खुशबू, अरमान, आपका आंसर पूरा नहीं सही।
उदित आपका आंसर सही है, बाकी सबका गलत। ठीक है, अगर आपका आंसर गलत आया, डोंट वरी, डू इट बाय योरसेल्फ अगेन आफ्टर दिस लेक्चर and cross verify with this. Deadlock is there and D and E and G. Now डिटेक्ट हो गया, डेडलॉक है, डिटेक्ट हो गया रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से। अल्गोरिदम देखेंगे कि जनरल अल्गोरिदम से ये डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना है, ये अल्गोरिदम है जनरल। फॉर ईच नोड n in the graph, perform the following 5 steps with n as the starting node. Then initialize one list L to the empty list, designate all arc as unmarked. यहाँ पे सबको अनमार्क फाइंड करो। फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ साइकिल जानी है, यहाँ से यहाँ साइकिल जा रही है, यहाँ से साइकिल जा रही है कि नहीं, इस तरह। तो थर्ड स्टेप, add current node to the end of L, check to see if node now appears in L 2 times. If it does, graph contains a cycle and algorithm terminates. cycle आया तो डेडलॉक है। सो यहाँ पे हम देख कैसे करेंगे, डी एड करेंगे, टी करेंगे, ई वी जी यू एंड डी करेंगे। तो वो उस लिस्ट में डी 2 टाइम आया, इट मीन्स ये पूरी साइकिल आ रही है। सो एक ही डायरेक्शन में हमें मूव होना है, ऐसा नहीं कि डी टू टी गए टी टू बी जाएंगे, क्योंकि टी टू बी एरो ही नहीं है। ठीक है, सो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सभी आर्क ले लेनी है, सभी आर्क, इट मीन्स ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, जितने भी एरोज है सभी एरो लेते जाना है। चलो मैं एग्जांपल के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मजा आए। एल्गोरिथम बाद में देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस आर्क, वन बाय वन सबसे सभी जगह से स्टार्ट करेंगे। सो आर से ए जा रहा है, सो वी विल एड आर एंड ए इनटू द एल, एल इज इक्वल्स टू आर एंड ए, दिस पॉइंट नंबर 3 एल्गोरिथम का। ठीक है, फिर ए से कहाँ जाएंगे, एस, एरो है, हाँ है, तो ए वी गो टू एस, गिविंग एल इज इक्वल्स टू आर ए एस। एस से किस साइड जा रहा है, जा रहा है कहीं पे, एस से सी जा रहा है, नहीं जा रहा है, एस से डी जा रहा है, नहीं जा रहा है, एस से एफ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो दिस इज नोन एज द डेड एंड। सो डेड एंड आ गया, उसका मतलब क्या हुआ, साइकिल नहीं बन रही, साइकिल नहीं बन रही है, तो इस पार्ट में डेडलॉक नहीं है। इट मीन्स ए प्रोसेस डेडलॉक में पार्ट ही नहीं ले रही है, ए प्रोसेस है डेडलॉक में पार्ट ही नहीं ले रही है। ठीक है, नाउ सी प्रोसेस की चेक करेंगे, सी टू एस, तो मेरा कर्सर देखते जाना, सी टू एस, एस से आगे कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि एस तो डेड एंड है, तो सी भी, सी प्रोसेस भी डेडलॉक में नहीं आएगी। नाउ एफ प्रोसेस के लिए और डब्ल्यू के लिए देखते हैं। डब्ल्यू एक्चुअली रिसोर्स है, लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, डब्ल्यू से एफ, एफ से एस, एस से आगे कुछ नहीं, तो ये एफ प्रोसेस है, वो भी डेडलॉक में नहीं है। हमारा आंसर सिर्फ क्या था, डी ई जी। अभी हमारा चेक करना बाकी है, बी से चेक करते हैं। बी से कहाँ जा रहे हैं, टी, टी से डी जाएंगे, नहीं जाएंगे, रिवर्स एरो नहीं है। टी से ई, ई वी जी यू डी एन टी। ठीक है, लेकिन टी से वापस बी नहीं जाएंगे ना, क्योंकि टी से बी का अप एरो नहीं है, तो बी भी डेडलॉक में इन्वॉल्व नहीं होगी। हाँ, टी से वापस घूम के टी तक आ गए, इट मीन्स डी ई एन जी, दिस 3 प्रोसेस विल बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे देखो मैंने एल में लिख ही दिया है, बी टी ई वी जी यू डी। यहाँ पे एक भी नंबर, एक भी अल्फाबेट 2 टाइम नहीं आ रहा है, इट मीन्स नहीं हो रहा है। और लास्ट लाइन में देखो अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी टू टी, टी 2 टाइम आ रहा है, इट मीन्स साइकिल बन रही है, साइकिल बन रही है, इट मीन्स साइकिल बन रही है, इट मीन्स डेडलॉक है। So this way you can detect for the one resource of each type. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीपल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप। इट मीन्स मैंने बोला था ना आपको एग्जांपल, आई हैव 1 एप्पल, 1 बनाना एंड 1 मैंगो, दैट इज वी हैव डन राइट नाउ। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि 10 एप्पल है, 5 बनाना है और 3 मैंगो है, उसमें से मैं आपको कितने दूं, जो लास्ट लेक्चर में हमने छोटे बच्चों वाली गेम खेली थी उस तरह से। ठीक है, मैंने बोला था इसलिए कि आप ध्यान रखना। सो मल्टीपल रिसोर्स में कैसे अलोकेट करेंगे,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन? अभिषेक तिवारी, कंफ्यूजन होगा, आपको फिर से स्टार्ट पहले से करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। If you have made mistake and if you are not able to do this thing, do it once, फिर से आप करना, ठीक है? लेट मी ओपन दैट स्लाइड। यस, आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट रखना है तो कर लो, ठीक है? वो सर एरो में मिस्टेक हो गया था। हाँ, वही तो मैंने बोला ना। कारण मैं क्या बोला कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन इजी वाला है, जीटीयू में नहीं पूछेंगे, वो तो पता है, हमें पता है, ठीक है? मिड में नहीं पूछेंगे कि इतना आईएमपी नहीं है, ठीक है? लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होती है आपकी, तब शॉर्टकट इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्टकट के लिए एरोस तो आपको याद होने चाहिए ना। अभी आप इतनी मिस्टेक करें तो चार साल के बाद, इंजीनियरिंग के बाद, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गेट का कोई भी प्लेसमेंट में जाओ तो बट ऑब्वियसली याद नहीं रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, ठीक है? फाइन। So in next lecture, in the next lecture we will see the multiple resource of each type. अभी एक ही टाइप के रिसोर्स में, एक ही में हमें ये दिक्कत हुई, मल्टीपल में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगी, तो आपको कंसंट्रेट करना है। सो अगेन टेक पेन एंड पेपर विथ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो।